Hello friends, welcome once again. In this video, we will take a topic called resilience. है ना, इसको psychological resilience, emotional resilience, physical resilience, किसी भी level पे हम बोल सकते हैं. So let's take its psychological resilience. You know, armed forces, army, navy, air force, we want people with strong psychological, emotional resilience. For the purpose of definition, resilience is the ability to mentally or emotionally or both, है ना, mentally or emotionally cope with a crisis or oblique and to return to pre-crisis status quickly. क्या मतलब है? Resilience ये आपके अंदर की वो काबिलियत है जो mentally या emotionally, भावनात्मक स्तर पे या मानसिक स्तर पे टू कोप विद अ क्राइसिस, एक मुसीबत या एक स्ट्रेसफुल हाई स्ट्रेस सिचुएशन को फेस करना और उससे जल्दी से जल्दी बाउंस बैक करके रिटर्न करना प्री क्राइसिस सिचुएशन में, यानी कि ओरिजिनल स्टेटस में वापस आने की क्षमता. ये एक बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है आर्म फोर्सेस का. दिस मे नॉट बी द सेम विद अदर सर्विसेज. ऑल लीडरशिप मे नॉट रिक्वायर दिस, बट इट इज़ अ डिज़ायरेबल थिंग टू बी योर एबिलिटी टू बाउंस बैक, है ना. तो रेजिलियंस में इसके बहुत सारे डायमेंशन है. जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये पौधा मतलब कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से रेजिलियंस के थ्रू निकल के आ रहा है. सो रेजिलियंस के बहुत सारे डायमेंशंस है. कुछ एग्जांपल के तौर पे, now this is Arunima Sinha, whom you know, she was pushed from a running train by some लफंडा लड़के लोग, and she lost both her legs. And she overnight, she went through the pain, and overnight, before even she went to the hospital, she bounced back and she made a decision that in टांगों के साथ she will climb up the Mount Everest. So दोनों टांग ना होते हुए अरुणिमा सिन्हा ने ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट किया, she climbed up many other क्या बोलते हैं peaks. So this was her resilience, her ability to bounce back both mentally, emotionally, physically, at all levels, to cope up with this crisis and to return to a pre-crisis status. In fact, not pre-crisis, much beyond the pre-crisis status. And आपको पता है कि मतलब she was awarded and all those stuff, and she's the first female amputee to have climbed Mount Everest. Our own Vikram Batra, Captain Vikram Batra, ये दिल मांगे मोर, पता है मौत आने वाली है, पता है, उसके बावजूद he wants to go there, kill them. Not only he wants, he did it, and we know rest is history. ये दिल मांगे मोर, resilience, है ना. नेक्स्ट कारगिल अपना सियाचिन में आपको पता है लेफ्टिनेंट लास्ट नायक हनुमान थप्पा, Madras regiment guy, he survived 6 days below 35 feet snow. I don't know what must be the temperature there. This is sheer willpower के ऊपर है. Resilience, human endurance का extreme है कि how can, मतलब अगर मन हार गया तो मर ही जाता, and he could survive that, and later subsequently he couldn't survive after medical intervention. That's a different thing. So resilience is the ability to mentally or emotionally cope up with the crisis, है ना. Similarly, Wing Commander Abhinandan, what a crisis it was. The whole nation was under stress when he was as long as he was there, है ना. My mother was glued to the TV. कब पाकिस्तान को छोड़ेगा, कब पाकिस्तान छोड़ेगा. Resilience, the ability to mentally or emotionally cope up with the crisis and return to pre-crisis situation. The moment he came back, है ना, medical test हुआ कुछ दिन के बाद, he was back into flying. What a resilience he had shown. And you remember that पाकिस्तान ने वो वीडियो पब्लिश किया था, 2-3 वीडियो. What a share he was, है ना. Sorry Major, I'm not supposed to tell you. And what kind of a torture he would have gone. But look at this. Resilience is the ability to mentally or emotionally cope up with a crisis or to return to a pre-crisis status. शेर का बच्चा वापस आया और वापस उड़ना शुरू कर दिया मेडिकल टेस्ट and all those psychological testing के बाद. So that is the quality, one of the character qualities that we are looking for in candidates. So when you go to the SSB, please build up your resilience, both mental, physical, emotional and psychological resilience, and character resilience also. मतलब बहुत strong strength of character के साथ जाना, और जब आप जाओगे तो आपको चारों स्तर पर चेक किया जाएगा. physical, mental or intellectual, emotional and the value dimension में your resilience will be checked. And आपको पता है कि last 2015 में NDA में there was one incident. 40 cadets from the NDA left NDA because they could not take the physical रगड़ा. जस्ट मैं ना इतना मेहनत करके कोचिंग करके आप कहाँ से जाके SSB में क्लियर करके मेडिकल क्लियर करके you go to the NDA, and 40 cadets in one batch left the NDA because they could not take the physical
stretching that was there. So the physical resilience कम हुआ, mentally टूट गए, emotionally टूट गए, and the determination to complete the training was gone. So they left the academy. If you want, I'll share the video, share the newspaper cutting. So that was bad. Why did you go to India if you don't have it in you? So please समझो उसको क्या बोल रहा हूँ. So resilience के बहुत सारे dimensions है. It is your coping skills at various level, physical level, intellectual level पे, emotional level पे, and the value dimension में you will be pulled. Optimism, किसी भी परिस्थिति में एक सकारात्मक सोच को बनाए रखना, सेल्फ एफिकेसी, आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास कि मैं इस कठिनाई के ऊपर से गुजर सकता हूँ. मुसीबत के टाइम पे भी सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइवलीनेस, ना सिर्फ खुद को बाउंस बैक करना, टू ब्रिंग अबाउट अ चीयरफुल एटमॉस्फेयर इन दी सराउंडिंग एरिया. कंट्रोल, नॉट एक्सटर्नल कंट्रोल. विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान में देयर वाज नो एक्सटर्नल कंट्रोल बट कंट्रोल within himself. If you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. परिस्थिति जैसी भी हो, मनस्थिति आपके कंट्रोल में होनी चाहिए. उसके ऊपर वीडियो देखना. कॉम्पिटेंस, अपने कॉम्पिटेंस को ही बढ़ा देना rather than giving up. Many people give up, procrastination. They want to remain in the comfort zone. How can you operate in high stress situation if you are so stuck to your comfort zone? You're a high procrastinator. Hope, optimism and hope similar. And spirituality, when nothing works, Bhagwan ki Shakti, the spiritual power, ki I'll endure this. The Wing Commander Abhinandan, with all his training, everything, when he's caught there, nothing can work. The only hope and the belief in the Almighty God, something good will happen. That kind of a resilience we are looking for. So candidate, जब आप SSB में जाओगे, there are a couple of OLQs that are directly checking this, indirectly or directly, resilience को. One is self-confidence, आपका आत्मविश्वास, self-efficacy. What is that? It is the faith in one's ability. It is the faith in your ability to meet stressful situations. So you will be subjected to stress in the SSB. You will be subjected to stress in the don't break down at the physical level, at the intellectual level, at the emotional level or the value level. First obstacle में मेरा power of expression कमजोर है सर, मैं कैसे करूँगा, हो जाऊँगा ना. You're breaking down, power of expression में टूट रहे हो तुम तो यार, बड़े बड़े क्या करना है. So it is the faith in your ability to meet stressful situation. वो भी किस टाइप के? Particularly those that are unfamiliar. So don't train and become familiar. When you do 10 PGT, 10 HGT, 10 command tasks, you are building familiarity. उस familiarity में आपका confidence होगा. But when SSB pushes you outside your comfort zone, your familiarity will become unfamiliar domain. So you don't have to do 10 PGT, 10 HGT. Ground पे जाके शादी से पहले सुहागरात नहीं करना है. What you need to do? Understand structure को कैसे analysis करना. That's what called structure analysis. You don't need 2.5 एकड़ की जमीन और ना 28 एकड़ की जमीन. All you need is to have a very sharp intellect. एक ऐसा intellect जो आंखों से इस structure को analyze कर पाए. The way our boys and girls are able to do it after 3-4 days of training. It is a matter of concentration. A concentrated mind is like a laser beam. It can cut through anything. But you are wanting too much of a familiarity. कि सर आपके पास ground है, 2.5 एकड़ की जमीन है, उसमें 10 PGT, 10 HGT, 10 command task है. No, you are getting into familiarity, familiar situation में जा रहे हो, जबकि they will test you under unfamiliar. Wing Commander Abhinandan, unfamiliar. Arunima Sinha, unfamiliar situation. Vikram Batra, unfamiliar. So please prepare yourself to bear that stress. Don't train yourself in comfort zone. So too much of a comfort zone. Next, look at this picture. So when you presented with this picture, naturally this picture character is under stress. And now you have to respond to this picture. And in the way you respond to this picture, the way you create hero/heroine and the way he or she responds to it, we will see is the hero/heroine showing physical resilience, intellectual resilience, emotional resilience and value resilience. So I will request you to write a story and post it below this, and then I'll see if I can take a couple of responses and see if those things are coming or not. Anyway, once you come to AFOSOP composite batch, we'll be doing that. But in case, I'll request you, those of you don't plan to come but only are watching the video, I'll request you kindly write it and show me her capacity to bounce back.
डोंट राइट कि शी लॉस्ट हर हॉकी मैच खेल रही थी और उसमें हार गई तो रो रही है, या 12th का पास नहीं हुआ, या JEE में फेल हो गई। इतना टुच्चा मत बनाओ। मेक इट अप्रोप्रिएट टू इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी, वैल्यू मेच्योरिटी। द रीजन हैज टू बी अप्रोप्रिएट टू योर एज। उसके ऊपर पहले से वीडियो बना हुआ है। सो प्लीज मेक ए स्टोरी। डोंट राइट इसका हॉकी में फेल हो गई और हॉकी में उसको वो नहीं मिला, उसको 12th में फेल हो गई। बहुत टुच्चा बनाते हो, बहुत टुच्चा नहीं बनाना। So I'll request you to write a story and post it here. Let's see the way. Now write 2 stories, not 1. In 1, she should bounce back by herself. Second, bring an external character and make this girl bounce back by pumping in energy. Let's see how do you do that. Second is liveliness. Iska definition is the capacity of an individual, that is you, to keep himself buoyant when meeting problem. This girl is losing her buoyancy. Your job as an external character or as this girl herself, you have to bounce back. The capacity of an individual to keep himself buoyant when meeting problem and bring about a cheerful atmosphere. ना सिर्फ तुम खुद अपने आप को बाउंस बैक करना, you have to bring a क्या बोलते cheerful atmosphere around you. मतलब जैसे वो पद्मावत मूवी में था, राजा से मंत्री पूछता सर आपकी फट नहीं रही कि साला अलाउद्दीन खिलजी उधर खड़ा हुआ है। बोलता फट मेरी भी रही है, लेकिन मैं एज ए राजा दिखा नहीं सकता, क्योंकि दिखा दिया तो मेरी पूरी प्रजा की फट जाएगी। सो यू मे बी हैविंग फियर बट यू कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट योर फियर। आप मानिकशा, जनरल मानिकशा को एक फील्ड मार्शल मानिकशा को एक वीडियो है लीडरशिप के ऊपर। वहाँ पे उन्होंने एक अपने ऊपर एक घटना दिया कि जहाँ पे एक सतनाम सिंह, उनका एक सरदार जी ने ऐसे बोल दिया कि मैं सांप को गोली मार दूंगा, और रात को उसी बंदे को अपने ऊपर ड्यूटी लगाया। और मानिकशा ने बोला कि मेरी फटी जरूर थी, लेकिन मैंने अपना दिखाया नहीं। दैट्स द काइंड ऑफ रेजिलियंस दैट यू वांट टू शो। आई विल रिक्वेस्ट यू वॉच दैट वीडियो। ना हो तो मुझे लिंक भेजने के लिए बोलना, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा आपको। AFOSOP का टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सो द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कीप हिमसेल्फ buoyant when meeting problems and bring out a cheerful, that is the resilience. Look at Wing Commander, look at Arunima Sinha, look at हनुमान थप्पा, क्या जबरदस्त रेजिलियंस दिखाया हुआ है ना। नेक्स्ट इज स्टैमिना दो स्तर पर, फिजिकल स्टैमिना एंड मेंटल स्टैमिना, है ना। इमोशनल स्टैमिना भी बोल सकते हो। It is the capacity to withstand protracted physical and mental strain. It emphasizes endurance, physical endurance, intellectual endurance, emotional endurance, and your ability to hold back to your value system. A man of principle and who can stand by it, है ना। सो प्रोट्रैक्टेड, लंबे समय तक के लिए। सो विंग कमांडर अभिनंदन 3 दिन रहे या 5 दिन रहे, हाउ लॉन्ग कैन ही स्टे। इसके लिए अगर आपको एक और वीडियो, एक और बुक चाहिए तो उसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। He says between the stimulus and the response, you have the freedom of choice, and that freedom of choice determines the way you adapt or you respond to life. So SSB में जा रहे हैं, अपने रेजिलियंस को इतना बढ़ा के ले जाओ। TAT ठीक करके मत ले जाओ, खुद को ठीक करो, TAT अपने आप ठीक हो जाएगा। आप जब SSB में जाते हो, डेफिनेटली आपसे ये अपेक्षा है कि यू विल शो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ रेजिलियंस, है ना। अ मैन, अ ऑनेस्ट मैन, अ मैन विद सेंस ऑफ ड्यूटीज, who meets his obligation, a man who tells the truth even under crisis, a person who gives others their due, a person considerate to the weak, a principled man who stands by them, balance in both good and bad times, balance in both good and bad times, a loyal person and a person who can be trusted. और आपने साइकोलॉजिकल रेजिलियंस का अपना डेफिनेशन ऑलरेडी देख ही लिया है। रेजिलियंस द एबिलिटी टू मेंटली और एंड इमोशनली कोप विद द क्राइसिस एंड or to return to pre-crisis situation at the earliest. Pre-crisis मतलब bounce back, गोबर नहीं बनना, पिंग पोंग बॉल बनना है ना। एंड देन दीज आर द 3 whole cues जिसके बारे में हमने बात किया। नाउ अगर आपके अंदर ये रेजिलियंस है, अगर आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है, तो हमें कैसा पता चलेगा? जब हम आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डालेंगे, अलग अलग GTO, फट्टा बल्ली इंटरव्यू में, तो आप जो रिस्पॉन्स दोगे, तो अगर आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है, डू यू हैव इट इन यू, है, then more resilient candidates are able to roll up the punches. मतलब आप उन घटनाओं से, उन परिस्थितियों से बहुत जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक करोगे, roll up with the punches and adapt to adversity without lasting difficulties. बहुत जल्दी उभर जाओगे, बहुत जल्दी। कभी आप 1-to-1 जब करेंगे तो हम अपने लाइफ से, मैं कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगा जहाँ पे मुझे लगता है मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि उस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई इन दैट सेंस कि मैं अपने को बता रहा हूँ, मैं आर्मी की भाषा में भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अपने निजी लाइफ में इतनी घटनाएं हुई, एंड आई थिंक आई हैव बीन एबल टू बाउंस बैक वेरी वेरी फिनोमिनली। व्हेन आई लुक बैक, आई सी यू आल्सो लुक बैक,
So when you come to us, we will do it the lifeline analysis and we will see what was your stress response. इस चीज को आपके अंदर है या नहीं है, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफ के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ढूंढना पड़ेगा. ऐसे ही लिखने के लिए नहीं बोल सकते कि आई एम ए वेरी डिटरमाइंड पर्सन. नो, दे विल टेस्ट यू. सो और अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आपके अंदर रेजिलियंस नहीं है, तो less resilience candidates have a harder time with stress and life changes, both major and minor. जिन लोगों के अंदर इमोशनल रेजिलियंस नहीं है, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस नहीं है, वो छोटे छोटे परिवर्तन से वो विचलित हो जाते हैं, उनको पूरा हिलना शुरू हो जाता है एंड दे डोंट नो हाउ टू बाउंस बैक. छोटे छोटे फेलियर से उनको असर हो जाता है, रिश्तों में खरोच हो गया, वो सुसाइड तक पे भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मूड स्विंग में चले जाते हैं, इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं. आप किस कैटेगरी के हो? फर्स्ट कैटेगरी हो, दे वांट यू. सेकंड कैटेगरी हो, please don't go for SSB. It is a core quality and you cannot hide core quality and go as suggested by a couple of people कि core quality को hide करो. पता नहीं उनका क्या compulsion है, why they want to get people into the organization जिनके core quality में deficiency है, character deficiency है, candidate से ज़्यादा उनका जो इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं. So मेरा सवाल आप लोगों से है, do you have psychological resilience in you? अपने जीवन में चेक करो, डू यू हैव इट इन यू. अगर नहीं समझ में आता है तो कम फॉर दी सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लास. हम आपको 3-4 दिन के अंदर बता दो कि वेयर डू यू स्टैंड, हाउ मच इज द गैप, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू फिल द गैप. हो सकता है आपका गैप एसएसबी के रिक्वायरमेंट तक भरेगा ही नहीं, बट आपको लाइफ में ये क्वालिटी चाहिए. विदाउट दिस आपकी पत्नी भी आपको लात मारेगी, बोला किस गोबर से शादी हो गई, छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है. आपकी पत्नी भी इज्जत नहीं करेगी अगर आपके अंदर रेजिलियंस नहीं है, एबिलिटी टू बाउंस बैक नहीं है. तो इसी तरह से मैं आज का एक घटना है, आज मैंने एक पिक्चर दिखाया था ये वाला, तो यू कैन क्लियरली सी देयर आर 2 पीपल, प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉब्ली आप जो भी इसको रिलेशन देना चाहते हो, है ना, ज़्यादातर लोग इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाते हैं. इट इज़ अ पर्सनल लाइफ का सीन है, पर्सनल लाइफ मतलब घर का सीन है. इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल लाइफ. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप बता सकते हो क्यों ये एक प्रोफेशनल लाइफ का सीन नहीं है, आप बताना. एंड इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व है. तो व्हाट वी वांट टू सी कि इसका कारण क्या है, कॉज क्या है. तो लॉ ऑफ कर्मा आपको पता चल जाएगा, उसको लगाओगे कि इसके पीछे क्या है. सेकंड वी वांट टू सी व्हाट इज योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल. इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व करके फाइनल गोल तक पहुंचते हो. तो जब ये दिखाया था तो एक बंदे ने इसके ऊपर स्टोरी लिखा था, एंड दैट बंदा इज अ सर्विस कैंडिडेट. So he is a service candidate. So service people are supposed to be more resilient because of their training and all those things. And now since this boy is an aspiring candidate to take commission, naturally he has to be much better than others. Not necessarily every soldier will have resilience because soldiers ka kaam they are under guidance, so they don't have to take independent decision most of the time, and even if they take decision, it is at a much lower level. It is more of a implementation level पे जो challenges आता है उनको meet करना. They don't have to plan and create all that. So let's see a response by a service candidate on this picture. एंड उस पिक्चर को जब देखो तो उसमें आप देखना एक्शन लेवल पे क्या हो रहा है, डिसीजन लेवल पे क्या हो रहा है, भावनाओं के लेवल पे क्या हो रहा है, थॉट लेवल पे क्या होगा, और इन सबको ध्यान में रखते हुए रेजिलियंस को समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी दी रेस्पॉन्स बाय सर्विस कैंडिडेट. सो दिस इज अ पिक्चर एंड दिस इज द रेस्पॉन्स. सो इट सेज राम इज ए 27-year-old बैंक मैनेजर इन SBI. सो 27 साल का SBI में मैनेजर है, मैनेजर पोस्ट का बैंक मैनेजर. एज ही वॉज पोस्टेड इन ए न्यू ब्रांच. तो ये जो राम है ये न्यू ब्रांच में पोस्टेड है. ही वॉज वेरी बिजी एंड ही फेस सम डिफिकल्ट का मतलब सम डिफिकल्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल हिज हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, पढ़ने में बहुत अच्छे से आ रहा है. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बहुत क्लियरली पढ़ने में आ रहा है ना. दोबारा मैं पढ़ता हूँ. राम इज़ ए 27-year-old बैंक मैनेजर इन SBI. As he was posted in new branch, he was very busy and he faced some difficulty. As that branch was, क्या लिखा हुआ है, as this was opened newly, staff was not sufficient. Accordingly the branch needs, according to branch needs. इसका मतलब क्या है, जिस ब्रांच में राम काम करता था वो न्यू ब्रांच था, उसमें लोड ज़्यादा था, वर्कलोड ज़्यादा था, और स्टाफ जितना चाहिए था उससे कम था. मतलब मैन पावर जितना चाहिए था, 15 चाहिए था, 20 चाहिए था, 12 चाहिए था, उतना नहीं था, कम था. तो एक आदमी को एक से ज़्यादा काम करना पड़ेगा. सो फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम के कारण राम फेस को काट दिया. अंडरगोज
अंडरगोज फ्रॉम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। तो बिकॉज बैंक के इस हालात के कारण, मैन पावर शॉर्टेज और काम के लोड के कारण राम को क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया एंड स्ट्रेस में आ गया राम। यहां तक ये लिखा है स्ट्रेस। ना एक चीज आपको ध्यान में देखना पड़ेगा कि कम से कम 4-5 लाइन हो गया है, लेकिन ये सारा चीज जो भी हो रहा है ये घर का सीन में नहीं हो रहा, बैंक में हो रहा है। मतलब ये पर्सनल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे बात प्रोफेशनल सिचुएशन की हो रही है। मुझे बताना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर कमेंट डाल के भेजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इफेक्ट्स ऑन हिज रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ। अब फैमिली में आ गया। इसका मतलब है कि बैंक का स्ट्रेस और जो भी है वो उसको डिप्रेशन में लेके आ गया और एक्सट्रीम स्ट्रेस में ले आ गया और ये इसके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने लग गया। सो देयर इज अ वर्क लाइफ, देयर इज अ फैमिली लाइफ। ही डिड नॉट स्पेंड टाइम विथ हिज वाइफ। ओके, वाइफ के साथ टाइम बिताने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि बैंक में बिजी था। सो फ्रॉम दिस दे मेक ए गैप बिटवीन देम। एंड क्योंकि बैंक में स्टाफ नहीं था, वर्कलोड ज़्यादा था और राम को स्ट्रेस हो गया था और राम को ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करने का टाइम नहीं दे रहा था, इसके कारण राम और सीता के बीच में गैप, दरार बढ़ना शुरू हो गया। तो अब ये पिक्चर आना शुरू हो गया है ना, बिटवीन देम। एंड एट एवरी मोमेंट दे हैड एन आर्ग्यूमेंट ऑन स्मॉल थिंग्स। और इस गैप के कारण स्मॉल, छोटी छोटी बातों के कारण राम और सीता के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने शुरू हो गए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि बैंक में स्टाफ कम है और लोड ज़्यादा है और राम को डिप्रेशन एंड स्ट्रेस फील हो रहा है। वन डे दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। एक दिन उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त आर्गुमेंट हो गया जैसा अभी दिख रहा है और उन्होंने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात नहीं किया। अब पिक्चर के ऊपर आ गया, बैंक से निकल के पिक्चर के ऊपर, घर के में आ गया। आफ्टर सम टाइम राम फील्स दैट दिस सिचुएशन लीड्स बिकॉज ऑफ हिम। राम को थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये जो घर के अंदर जो माहौल पैदा हुआ है ये मेरे कारण हुआ है। आई एम द कॉज एंड इफेक्ट इज घर में प्रॉब्लम, है ना। सो ही डिसाइडेड टू से सॉरी टू हिज। तो उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि सीता सॉरी, आई एम सॉरी फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स इन द हाउस। तो राम ने क्या किया, सीता को सॉरी बोला। तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सॉरी बोला वाइफ, विदाउट समथिंग लिख के काट दिया। एंड मेक हिज रिलेशनशिप गुड एंड हेल्थ। हेल्थ मतलब हेल्थी। और उसने अपना सीता और राम का रिलेशनशिप कैसा हो गया, गुड एंड हेल्थी हो गया, गुड एंड हेल्थी। और स्टोरी यहाँ पे एंड हो गया ना। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। शुरुआत जब हुआ था बैंक से हुआ था और बैंक का जो शुरुआत का प्रॉब्लम था वो था मैन पावर का, वर्कलोड का और उसका डिप्रेशन एंड स्ट्रेस का। लेकिन धीरे धीरे स्टोरी में ये घर पे पहुंचा तो घर के बीच में राम और सीता के बीच में गैप आ गया और फिर इसने एक झटके में सॉरी बोल के उसको सॉल्व भी कर दिया। सो देर आर टू प्रॉब्लम, द बैंक प्रॉब्लम विच इज द बिगर प्रॉब्लम एंड अ सबसेट इज द रिलेशनशिप प्रॉब्लम। एंड स्टोरी के एंड में ये प्रॉब्लम ठीक हो गया, इसका पता नहीं चला। डिप्रेशन एंड स्ट्रेस तो इससे आया था। सो से सॉरी टू हिज वाइफ एंड मेक हिज रिलेशनशिप। तो मुझे बताना व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम में मैं बोलूंगा, ध्यान से बोलना मैं क्या बोल रहा हूं। सेकेंडरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, वो भी कैसे, बाय सेइंग सॉरी। बहुत ओवर सिंप्लीफाइड हो गया। सेकेंडरी, द प्राइमरी प्रॉब्लम हैज नॉट बीन एड्रेस्ड। सो please, can you somebody explain what is this primary problem and what is this secondary problem? And the primary problem is still not addressed and the depression and stress is still not addressed. And resilience का definition अगर आप देखोगे, it is the ability to mentally or emotionally cope up with the crisis and return to pre-crisis situation. Pre-crisis situation अभी भी नहीं आया, only घर में आपने एक superficial level पे शांति बना लिया, लेकिन the pre-crisis situation has not been handled. किसको क्या समझ में आया बताना, मुझे बताना कि यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइवलीनेस, स्टैमिना जिस तरीके से एसएसबी में हम देख रहे हैं, क्या वो आया नहीं आया। हाउ मेनी वी फील, इसके ऊपर फीडबैक लिख के मुझे बताना, हाउ मेनी वी फील दिस इज एन एक्सेप्टेबल response and how many of you feel कि इसमें गैप दिख रहा है एसएसबी को। एट द बिहेवियर लेवल देयर इज अ गैप,
कि सेकेंडरी प्रॉब्लम सॉल्व करके एट डिसीजन मेकिंग लेवल में अंडर स्ट्रेस योर एबिलिटी टू टेक बैलेंस डिसीजन इज गोइंग. इट इज नॉट ओनली अफेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रेशर, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग इमोशनल प्रेशर बिकॉज गोइंग इनटू डिप्रेशन एंड हाई स्ट्रेस में. एंड योर वैल्यू सिस्टम इज सच कि आप इसको इस पूरे बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड टुवर्ड्स हाई स्ट्रेस इज क्वेश्चनेबल. एंड आपकी मानसा की क्वालिटी मुझे बताना कैसे आया. क्या आपको एसएसबी को लगता है कि इस गैप को वो ट्रेनेबिलिटी को ऐड करके उनको लगता है कि ये एक ऑफिसर, एवरेज ऑफिसर बनने का पोटेंशियल शो कर रहा है? ये मुझे ज़रूर बताना कि आपको आपके हिसाब से क्या लगता है. ये जो गैप आया है, अगर आपको लगता है, या नहीं आया क्योंकि वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को तो पा ही लिया है, तो आपको क्या लगता है? रेजिलियंस दिख रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लाइवलीनेस दिख रहा है, स्टैमिना दिख रहा है? क्या द प्रॉब्लम हैज़ बीन लॉजिकली कंक्लूडेड? व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ मानसा कमिंग? और उस मानसा में एक्शन लेवल पे क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या हो रहा है, फीलिंग पे क्या हो रहा है? इसके ऊपर जरूर कमेंट लिखना तभी आपका दिमाग एक्टिवेट होगा. वरना हम कोचिंग वाले जो है आपको ऐसे ही लिपापोती करते रह जाएंगे. आपको अपना रिस्पॉन्स को समझना है. तो मुझे बताना, क्या आपको गैप दिख रहा है? क्या ये गैप एक्सेप्टेबल है? ये एक सर्विस एंट्री कैंडिडेट है, तो अगर ये एनडीए वाला होता तब भी ये अलाउड नहीं है. अब तो ये सर्विस एंट्री वाला, तो क्या ये गैप एक्सेप्टेबल होगा एक सर्विस कैंडिडेट से? और ये जो बैंक का स्ट्रेस को घर में ले जाके घर का रिश्ते को खराब कर रहा है, डू यू थिंक दिस पर्सन कैन बैलेंस दी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? इन सब चीज़ों के ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट्स लिख के भेजना. और मुझे ये भी बताना कि आप लोग क्या आप लोगों में इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, रेजिलियंस है, या आप भी इस लड़के की तरह गैप आएगा? और अगर गैप आएगा, इस गैप को भरने का तरीका क्या है? सेल्फ प्रिपरेशन में कैसे भर रहे हो, और अगर किसी कोचिंग में जा रहे हैं वो कैसे भरवा रहे हैं? मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ. पहला सवाल है, क्या आप किसी आईएसओ सर्टिफाइड टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट टीएटी स्टोरीज को लेके कोर टिप्स एंड ट्रिक्स करके अगर इसको स्टोरियों को बदल दो तो आपका इमोशनल रेजिलियंस बढ़ जाएगा लगता है? मतलब स्टोरियाँ चेंज करने से इस सर्विस एंट्री कैंडिडेट का इमोशनल रेजिलियंस बढ़ जाएगा? सोच के बताना. क्या आपने अपने मुखौटे को बदलने से अंदर का इंसान बदल जाएगा? क्या गिफ्ट रैपिंग को चेंज करने से गिफ्ट बदल जाएगा? तो मुझे ज़रूर बताना. हाइड कोर क्वालिटीज़ है ना, ये कोर क्वालिटी वीकनेस है. और एक बहुत बड़े नंबर 1 है, वो बोलते हैं कि कोर क्वालिटी को हाइड ही कर दो अगर वीकनेस है. तो आपको लगता है इसको हाइड करने से एसएसबी से 3 लोगों से 5 दिन आप बचा लोगे? कर्मा, वाचा, मानसा. उन्होंने बोला कि स्प्रिंकल ऑयल क्यों, अपने एसडी में स्प्रिंकल ऑयल क्यों कर दो? आपको लगता है ये कितना भी बंदा स्प्रिंकल ऑयल क्यों करे? इसमें भी तो, इस स्टोरी में भी तो क्या लगता है कि स्प्रिंकल ऑयल क्यों करने से बच जाएगा? क्या ऑयल क्यों नमक है? उसके बाद आप सिग्नेचर कोर्स कर लो 5 दिन, तो ये वीकनेस सिग्नेचर कोर्स से 5 दिन से बढ़ जाएगा. टीएटी ठीक कर लेंगे, 2.5 एकड़ की जमीन पे जाके फट्टा बल्ली करवा लेंगे. 2 पीजीटी 2 एचजीटी 10 कमांड टास्क कर लिया, रटवा भी लिया, शादी से पहले सुहागरात भी करवा लिया. क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? आप मुझे जरा सोच के बताना. SSB is a personality based selection and SSB is a subset of life. What you are in life, you will only remain that in the SSB. So by changing your TAT, WT, SRT and core quality hiding से आप नहीं बनोगे. When you improve as a person, you will your responses will change. Don't manipulate your responses. Improve yourself. That's my and जिस तरह का ये प्रॉब्लम है, इसको हो सकता है ये बंदा कभी बने भी ना, क्योंकि सर्विस एंट्री है, ऑलरेडी इसने मिलिट्री सिचुएशंस के बाद भी ये रेजिलियंस आया. तो हो सकता है आप क्लियर भी ना हो, और हो सकता है क्लियर हो जाए अगर आपको उस लेवल पे आ जाए. बट nobody can guarantee you. Yes, what AFOSOP can guarantee you is we will give you tools to build it up, because without emotional resilience आपका तो नॉर्मल जीवन नहीं चलेगा. आप छोटी छोटी बातों में फेलियर से उठ ही नहीं पाओगे. आपको फियर ऑफ फेलियर पकड़ लेगा. आपका कभी आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ेगा. जीवन के लिए जरूर हो जाएगा, लेकिन एसएसबी के लिए उनका एक एक्सपेक्टेशन है, आप उसे उठा लो. इस एक्सपेक्टेशन को इतना कम कर लो कि इसमें जब वो ट्रेनेबिलिटी ऐड करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि तुम एवरेज ऑफ द प्रोफाइल में आ जाएगा, दे विल रिकमेंड यू. दिस इज द वे आई हैड ट्रेन्ड माई सेल्फ एंड दिस इज द वे आई एम स्टिल वर्किंग, एंड आई विश दिस इज द वे यू शुड डू. Don't look for tips and tricks to crack SSB. 3.6% is the clearance rate. कुछ तो बात होगी. So सोच समझ के अपने आकाओं को
सेलेक्ट करना. रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर 2 weeks and 4 weeks ऑफ कॉम्पोजिट बैच. अगला बैच 8 February से शुरू हो रहा है. 2 weeks इज फ्रॉम 8 February to 28 February एंड 4th week इज फ्रॉम 8 February to 6th March 2021. SML का टाइमिंग इज फ्रॉम 6 AM to 8 AM Monday to Saturday एंड SSB क्लासेस का टाइमिंग इज फ्रॉम 8:45 to 10:45 AM. We will assure you 100% clarity. ना सिर्फ आपको गैप दिखाएंगे, इस गैप को भरने की विधि भी बताएंगे. You will get 3 things from us: the knowledge, what to change, why to change, and what are the consequences if you don't change. That's a gap. Second, we will give you the skills. द स्किल्स. मैं इन वीडियोस में स्किल्स को नहीं डाल रहा हूँ दैट बिकॉज मैं पहले वो डालता था, लेकिन मेरे जो प्रिविलेज बैच के बच्चे हैं वो बोलते हैं सर सब कुछ अगर फ्री में डाल रहे हो तो हमसे पैसा क्यों लिए. सो आई स्टॉप डूइंग दैट. सो देयर आर सम पीपल हु कीप सेइंग सर आप हमें सोल्यूशन नहीं बताते. यू कैन जॉइन दैट, विल गेट इट. सो यू विल गेट द स्किल्स, द विधि, हाउ टू ब्रिज दिस गैप, हाउ टू ब्रिज दिस गैप. एंड वन थिंग दैट वी कैन नॉट गिव इज द डिजायर, इच्छा शक्ति. आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो ये आप नॉलेज एंड स्किल्स के होते हुए भी विदाउट डिजायर यू कैन नॉट फिल दिस. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ने की इच्छा शक्ति रखते हो? अगर रखते हो, जॉइन द AFOSOP कॉम्पोजिट बैच. लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हुए कोर क्वालिटी को हाइड करने वाली ट्रेनिंग करते हो, प्लीज डोंट गो टू कम टू AFOSOP बिकॉज यहाँ का अप्रोच बहुत ही डिफरेंट है. यहाँ के अप्रोच में आपको करने के लिए स्ट्रांग रेजिलियंस बिल्ड करना पड़ेगा. अगर ऐसा आप में दम है तो यू कैन रजिस्टर ऑन सेंडिंग माई व्हाट्सअप एट 8275577650. इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है. सेंड यू द डिटेल्स. अगला बैच 8 तारीख से शुरू हो रहा है. कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कैन कॉल मी. एंड इफ यू फील दिस वीडियो इज वर्थवेल फॉर SSB कैंडिडेट्स, बहुत सारे वीडियोस तुम लोग शेयर करते हो. अगर तुम्हें लगे इस वीडियो में थोड़ी सी भी 5% भी सच्चाई हो तो जरा शेयर कर दो यार, ठीक है ना. अपने वीडियोस में 2000 व्यू भी नहीं मिलता. मुझे पता क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये हजम ही नहीं होगा. दिस इज टू कड़वा सच. सो जरा चेक करना, डू यू हैव साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस. अपने बारे में चेक करना. इस वीडियो के ऊपर कमेंट डालना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करो. और जरूर फीडबैक लिखना. एंड थैंक यू एंड आई होप दिस वीडियोस आर हेल्पिंग एंड गिविंग डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट्स. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.